हेलो बच्चों, होप यू एंड योर फैमिली विल बी फिट एंड फाइन। बच्चों, आज हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग पोएम करने वाले हैं। इस पोएम में एक एंट है और एक क्रिकेट। एंट यानी कि चींटी और क्रिकेट यानी कि टिड्डा। बच्चों, ये पोएम इसलिए भी महत्वपूर्ण है, इसलिए भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि यह बहुत ही बड़ा संदेश देने वाली है। लाइफ को कैसे जीना चाहिए यह बताने में यह पोएम बहुत ही हेल्पफुल होगी। बच्चों, मैं एक लाइन बोलूँगा, उसके बाद आपको उसके पीछे पीछे वो लाइन बोलनी है ताकि आप पोएम का पूरा मज़ा ले सकें। तो शुरू करते हैं। द एंट एंड द क्रिकेट। A silly young cricket accustomed to sing. 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 Through the warm sunny months of gay summer and spring. Through the warm sunny months of gay summer and spring. Through the warm sunny months of gay summer and spring. Through the warm sunny months of gay summer and spring. Began to complain when he found that at home. Began to complain when he found that at home. Began to complain when he found that at home. Began to complain when he found that at home. His cupboard was empty and winter was come. 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 Not a crumb to be found. 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 On the snow-covered ground. On the snow-covered ground. On the snow-covered ground. On the snow-covered ground. Not a flower could he see. 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 Not a leaf on a tree. 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 Oh, what will become, says the cricket, of me? Oh, what will become, says the cricket, of me? Oh, what will become, says the cricket, of me? Oh, what will become, says the cricket, of me? At last by starvation and famine made bold. 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 All dripping with wet and all trembling with cold. All dripping with wet and all trembling with cold. All dripping with wet and all trembling with cold. All dripping with wet and all trembling with cold. Away he set off to a miserly ant. 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 To see if to keep him alive he would grant. To see if to keep him alive he would grant. To see if to keep him alive he would grant. To see if to keep him alive he would grant. Him shelter from rain. Him shelter from rain. Him shelter from rain. Him shelter from rain. And a mouthful of grain. 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 He wished only to borrow, he would pay it tomorrow.
He wished only to borrow, he would repay it tomorrow. He wished only to borrow, he would repay it tomorrow. He wished only to borrow, he would repay it tomorrow. If not, he must die of starvation and sorrow. If not, he must die of starvation and sorrow. If not, he must die of starvation and sorrow. If not, he must die of starvation and sorrow. Says the ant to the cricket, I am your servant and friend. Says the ant to the cricket, I am your servant and friend. Says the ant to the cricket, I am your servant and friend. Says the ant to the cricket, I am your servant and friend. But we ants never borrow, we ants never lend. But we ants never borrow, we ants never lend. But we ants never borrow, we ants never lend. But we ants never borrow, we ants never lend. But tell me, dear cricket, did you lay nothing by? But tell me, dear cricket, did you lay nothing by? But tell me, dear cricket, did you lay nothing by? But tell me, dear cricket, did you lay nothing by? When the weather was warm, quoth the cricket, not I. When the weather was warm, quoth the cricket, not I. When the weather was warm, quoth the cricket, not I. When the weather was warm, quoth the cricket, not I. My heart was so light that I sang day and night. My heart was so light that I sang day and night. My heart was so light that I sang day and night. My heart was so light that I sang day and night. For all nature looked gay, you sang, sir, you say. For all nature looked gay, you sang, sir, you say. For all nature looked gay, you sang, sir, you say. For all nature looked gay, you sang, sir, you say. Go then, says the ant, and dance the winter away. Go then, says the ant, and dance the winter away. Go then, says the ant, and dance the winter away. Go then, says the ant, and dance the winter away. Thus ending, he hastily lifted the wicket. 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 And out of the door turned the poor little cricket. And out of the door turned the poor little cricket. And out of the door turned the poor little cricket. And out of the door turned the poor little cricket. Fox called this a fable, I will warrant it true. Fox called this a fable, I will warrant it true. Fox called this a fable, I will warrant it true. Fox called this a fable, I will warrant it true. Some cricket have 4 legs and some have 2. Some cricket have 4 legs and some have 2. Some cricket have 4 legs and some have 2. Some cricket have 4 legs and some have 2. आपने बहुत ही आनंद लेते हुए इस पोएम को गाया है, एंजॉय किया है। तो अब हम इस पोएम को एक एक लाइन करके इसके मीनिंग के साथ इसको समझने की कोशिश करते हैं। ये बहुत ही मनोरंजक, इंटरेस्टिंग बनेगा, बहुत एंजॉय होगा आपको। इसलिए अब आप एक एक लाइन को
देखते रहें, सुनते रहें, समझते रहें और अच्छे से इस पोएम को समझें। पहली लाइन है अ सिली यंग क्रिकेट, यानी एक छोटा मूर्ख टिड्डा था। अकस्टम्ड टू सिंग थ्रू द वार्म सनी मंथ ऑफ गे समर एंड स्प्रिंग, उसे गर्मी और बरसात के गर्म महीनों को खुशी में गाते हुए बिता देने की आदत थी। Began to complain when he found that at home his cupboard was empty and winter was come. जब सर्दी का मौसम आया तो वह शिकायत करने लगा कि उसके भंडार में, उसके घर में खाने के लिए कुछ भी नहीं था। Not a crumb to be found on the snow covered ground. झिंगुर यानी कि उस टिड्डे को बर्फ में ढकी हुई जमीन पर भोजन का एक भी टुकड़ा नहीं मिला। Not a flower could he see, not a leaf on a tree. उसे कहीं भी किसी पेड़ पर ना कोई फूल और ना ही कोई पत्ता दिखाई दिया। Oh, what will become, says the cricket of me. टिड्डा चिंतित होकर बोला कि ओह, अब मेरा क्या होगा। बाय स्टारवेशन एंड फीमेन मेड बोल्ड, अंततः टिड्डा भूखमरी और अकाल से नीडर बन गया। ऑल ड्रिपिंग विद वेट एंड ऑल ट्रेमरिंग विद कोल्ड, वर्षा से भीगता और ठंड से कांपता हुआ। अवे ही सेट ऑफ टू ए माइजरली एंट, वह एक कंजूस कीड़ी यानी कि चींटी के पास पहुंच गया। टू सी इफ टू कीप हिम अलाइव ही वुड ग्रांट, वह जानना चाहता था कि क्या चींटी उसे जिंदा रहने में उसकी सहायता करेगी। हिम शेल्टर फ्रॉम रेन एंड अ माउथ फुल ऑफ ग्रेन, तथा वर्षा से उसको आश्रय और भरपेट भोजन देगी। ही विश्ड ओनली टू बोरो, वह तो केवल उधार लेने का इच्छुक था। ही वुड रिपे इट टुमारो, और उसे वह कल लौटा भी देगा। इफ नॉट ही मस्ट डाई ऑफ स्टारवेशन एंड सॉरो, नहीं तो वह भूख और कष्ट से मर जाएगा। Says the ant to the cricket, I am your servant and friend. चींटी टिड्डे से बोली, मैं आपकी सेवक और मित्र हूँ। But we ants never borrow, we ants never lend. लेकिन हम चींटियाँ ना तो कभी उधार लेती हैं और ना ही उधार देती हैं। But tell me dear cricket, did you lay nothing by? लेकिन मुझे आप ये बताओ प्रिय झिंगुर, क्या तुमने गर्मी के मौसम में कुछ भी बचा कर नहीं रखा। When the weather was warm, quoth the cricket, not I. झिंगुर ने उत्तर दिया कि नहीं, मैंने कुछ भी बचा कर नहीं रखा। My heart was so light that I sang day and night. झिंगुर ने कहा कि मेरा हृदय उस समय इतना प्रसन्न था कि मैं दिन और रात गाता रहता था। फॉर ऑल नेचर लुक्ड गे, क्योंकि मुझे सारी ही प्रकृति खुश दिखाई देती थी। यू सैंग, सर यू से, गो देन सेज द एंट एंड डांस द विंटर अवे। तो चींटी ने कहा, श्रीमान आपने गर्मियों को गाकर बिता दिया, तो जाओ सर्दियों को भी नाच कर ही बिता दो। Thus ending he hastily lifted the wicket, ऐसा कहकर चींटी ने छोटा दरवाजा उठाया। एंड आउट ऑफ द डोर टर्न द पुअर लिटिल क्रिकेट, और उस छोटे से बेचारे टिड्डे को चींटी ने अपने घर के दरवाजे से बाहर कर दिया। फोक्स कॉल दिस अ फेबल, लोग इसे लोक कथा कहते हैं।
आई विल वारंट इट ट्रू, लेकिन मैं ये सच मानता हूँ। सम क्रिकेट्स हैव 4 legs, क्योंकि कुछ क्रिकेट्स के तो 4 टांगें होती हैं। एंड सम हैव 2, और कुछ एक की केवल 2 होती हैं। मुझे लगता है बहुत ही आनंद आपको आया होगा। अब बच्चों इस पोएम के अंदर आने वाले कठिन शब्द यानी कि डिफ़िकल्ट वर्ड्स को देखते हैं। हम उनकी मीनिंग करेंगे ताकि आपको ये पोएम और अच्छे ढंग से समझ में आ जाए। तो शुरू करते हैं वर्ड मीनिंग। तो बच्चों पहला वर्ड है सिली, यानी फुलिश, मीन्स मूर्ख। कंप्लेन, ग्रम्बल, यानी कि शिकायत करना। अकस्टम्ड, हैबिट, आदत होना। क्रम्ब, यानी कि पीस ऑफ फूड, भोजन का टुकड़ा। बोल्ड, नॉट अफ्रेड, यानी निडर। रीपे, पे बैक, वापिस अदा करना। लैंड, गिव अ लोन, यानी कि कर्ज देना। हेस्टली, हरिडली, यानी कि शीघ्रता से। फेबल, अ स्मॉल स्टोरी विद अ मॉरल, यानी कि लोक कथा। बच्चों आपने वर्ड मीनिंग भी बहुत बढ़िया ढंग से किए हैं और मैं आशा करता हूँ आपको बड़ा मज़ा भी आ रहा होगा, आप बहुत एंजॉय भी कर रहे होंगे। तो बच्चों अब जो है हम इस पोएम से संबंधित कुछ क्वेश्चंस और आंसर्स करते हैं। इससे आपको पता भी चल जाएगा कि आपको कितना कुछ समझ में आ चुका है। तो बच्चों शुरू करते हैं क्वेश्चंस एंड आंसर्स। तो बच्चों पहला क्वेश्चन है, द क्रिकेट सेज, ओ व्हाट विल बिकम ऑफ मी, व्हेन डज ही से इट एंड व्हाई। तो बच्चों टिड्डा कहता है कि ओह मेरा क्या होगा, वह ऐसा कब कहता है और क्यों कहता है। सोच के बताओ। सर जी मैं बताता हूँ। द क्रिकेट स्पीक्स दीज वर्ड्स इन द विंटर सीजन। He says so because he finds no food anywhere. शाबाश, टिड्डे ने ये शब्द सर्दी की ऋतु में कही रहे। वह ऐसा इसलिए कहता है क्योंकि उसे खाने के लिए भोजन कहीं भी नहीं मिलता। नेक्स्ट है, व्हाट इज योर ओपिनियन ऑफ एंट्स प्रिंसिपल, यानी चींटियों के सिद्धांत के बारे में आपका क्या विचार है। सर जी मैं बताता हूँ मेरा विचार। द एंट्स प्रिंसिपल हैज़ अ लॉजिक बट इट इज़ डिफ़िकल्ट टू फॉलो दिस प्रिंसिपल। शाबाश, बहुत बढ़िया कि चींटियों के सिद्धांत में एक तर्क तो है, परंतु इस सिद्धांत का पालन करना काफ़ी कठिन है। बच्चों ये लास्ट क्वेश्चन आपको अपने शब्दों में बताना है। राइट द कमेंट ऑफ द पोएट इन योर ओन वर्ड्स। जो कवि ने टिप्पणी की है लास्ट में, उसे आप अपने शब्दों में बयां कर सकते हैं, बता सकते हैं। सर जी मैं बताता हूँ। मुझे ये पोएम बहुत पसंद आई। तो बताओ बेटा। सर जनरली पीपल सेज दैट इट इज़ अ शॉर्ट स्टोरी. It conveys a message to us, but the poet says that it is a truth. There are different kind of pupils in the world. Some people spend all their earning on their enjoyment. Some people save for hard time. बहुत ही बढ़िया, बहुत ही अच्छी तरह से आपने जवाब दिया है कि प्राय लोग कहते हैं कि यह एक छोटी सी कहानी है, यह हमें एक संदेश देती है, लेकिन कवि का मानना है कि यह एक सच्चाई है कि संसार में अनेक प्रकार के लोग होते हैं। कुछ लोग अपनी सारी कमाई
अपने आनंद पर खर्च कर देते हैं और कुछ लोग मुश्किल समय के लिए यह बचाकर रखते हैं। बहुत ही बढ़िया आपने इसका आंसर दिया है। बच्चों, आपने वर्ड मीनिंग्स और क्वेश्चन आंसर्स बहुत ही अच्छे ढंग से किए हैं। आपको घर से इन्हीं क्वेश्चन आंसर्स को भी और वर्ड मीनिंग्स को भी दोबारा रिवाइज करना है ताकि आपको अच्छे से ये पोएम समझ में आ जाए। आपका इस वीडियो को बड़े ध्यान से देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।